How are you all? Okay, very good. So in our last class, we covered our first topic, that was Introduction to International Relations, its significance and and its scope. Was everything clear to you? Any problem? Did you get the idea what you are going to study in your entire course? Have you all finalized that you are going to select international relations or not? Yet not? कब फैसला होगा? इम्तिहान वाली रात होगा फैसला? हाँ जी. Have you decided that you are going to take international relations or political science? That's what you have to decide. All right. So our today's topic is the rise of nation-state system. Once you had the idea that what do you mean by international relations, now you have to see the history, that from where the concept of state generated. This is the requirement of today's topic, right? All right. So let's begin. Can anyone tell me what difference have you observed in state, nation, and nation state? Any idea? नेशन क्या होती है, रियासत क्या होती है, और नेशन स्टेट क्या होती है? कुछ पढ़ा था टॉपिक के बारे में कि नहीं? ओके. लेकिन जब जॉब का असर कम होने लगा, कुछ लोगों ने यानी जो से उनका असर चल रहा सोसाइटी में, तो उन्होंने शहर को कंफाइन कर दिया, यानी उधर पॉलिटिक्स कर दिया. जो सिस्टम है इमर्ज हुआ, उसको हम आज जानते हैं नेशनल स्टेट सिस्टम. ओके. एनी अदर आइडिया? यस, एनीवन फ्रॉम गर्ल्स? नो आइडिया? So in order to move further, first I would like to give you the definition of these three things: state, nation, and nation state system. Once you get the idea that what do you mean by all these three terms, only then you will be able to understand the rise of this system. And I will take you back to the history of international relations. ओके जी, ठीक है. चलें देखते हैं क्या है आज. ओके. सो टुडेज टॉपिक इज द नेशन स्टेट सिस्टम. ओके. Here we will try to cover past and future. So state is basically a dominant actor of international system. So you cannot deny the importance of state. It is basically, once you do not have the state, once you do not have any recognition, how are you going to prove yourself? अगर आपका किसी के साथ आपकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं होगी, कुछ पहचान नहीं होगी, so where do you stand? You will not stand anywhere. So for that, in order to survive in this world, you should have a proper recognition of yours. Once you don't have the recognition, nobody is going to give you the importance. So it is basically a dominant actor of international system. Now you have to understand the meaning of the nation state.
So meaning is basically a nation state is a system, organization, in which people with a common identity inside a country with a firm borders and a single government. आई एम रिपीटिंग अ नेशन स्टेट. लिख लें आप लोग, पहले लिख लें फिर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ. वेयर फर्म बॉर्डर्स एंड अ सिंगल गवर्नमेंट. Have you all noted down? Alright, now look at the definition. Once you get the clear idea over here, आपको सारी चीज़ें समझने में आसानी हो जाएगी. A nation state is a system of organization in which people with a common identity, एक पहचान हो, यूनिफिकेशन होनी चाहिए, एक आइडेंटिटी होनी चाहिए आपकी. जी, do you want to say anything? नहीं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सारे मुस्लिम्स और सारे वो नॉन मुस्लिम, बट अ कॉमन आइडेंटिटी. ओके, विद अ कॉमन आइडेंटिटी लिव इनसाइड अ कंट्री विद अ फर्म बॉर्डर्स एंड अ सिंगल गवर्नमेंट. ठीक है. हाँ, अब नाउ आई वांट टू आंसर योर क्वेश्चन. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान in 1947. Pakistan was separated on the basis of Muslim ideology. So it was marked that time that all the Muslims majority will live in this country. But it is not the case that if we do not have the majority, we will not entertain the minority as well. ये नहीं कहा गया है कि सारे मुसलमान हैं तो अगर कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी या कोई हिंदू कम्युनिटी के आगे रहना चाहे तो हम उसको मना कर देंगे. ऐसा भी नहीं है. बट विद अ कॉमन आइडेंटिटी, मेजॉरिटी. ठीक है. जैसे जैसे आगे आप पढ़ेंगे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. विद अ फर्म बॉर्डर्स एंड अ सिंगल गवर्नमेंट. टिल येट इट इज क्लियर या नहीं है तो अभी बताएं. ऑलराइट. सो नाउ अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट. नहीं, वो डोमिनेंस और उसका नहीं था. उसके ये था कि भाई जितने एक अगर मज़हब की बुनियाद पर रखा गया था मुल्क को, तो उसमें यह कि जो मेजॉरिटी थी वो एक साइड पे हो जाए, जो दूसरी मेजॉरिटी है वो एक साइड पे हो जाए. हम पाकिस्तान वाज अचीव्ड ऑन द टू नेशंस थ्योरी कॉन्सेप्ट पे आया है ना. क्लियर होगी बात? नहीं हुई? हो जाएगा क्लियर. क्या नहीं हो बताइए. बैठे हाँ, बैठ के बात कीजिए. कल्चर होता है, सिविलाइजेशन होता है. मतलब पाकिस्तान के केस में मज़हब है जो कि दुनिया में पहली बार है. ठीक है. क्या हुआ था? तो मज़हब की अगर मज़हब पे हुआ था ना,
तो फिर क्या कहा गया था, जो मेजॉरिटी थे मुस्लिम्स उनको एक साइड पे कर दिया गया था ना। इसके अंदर मेरा सवाल है कि अगर उसके अंदर नेशन पाकिस्तान में हमेशा से ये है तो अपने आप में एक नेशन है, जो नेशन की डेफिनेशन पे पूरे होते हैं, उनको फिर मिला के एक नेशन बनाना एक इस तरह किया है। देखें उस टाइम आपका मज़हब को मेन आइडेंटिटी बनाया गया था, कोई सिंधी था, कोई बलोची था, कोई पठान था, वो नहीं इम्पोर्टेंस दी गई थी। पहले सिर्फ मुस्लिम्स जो थे उनको रखा गया था। अभी देखें इंटरनेशनल रिलेशंस को तो मैं टच ही नहीं कर रही, अभी मैं सिर्फ आपको उस कॉन्सेप्ट का बता रही हूँ कि जैसे 1947 में आपका एक मिसाल थी, जो कॉमन आइडेंटिटी थी, मैंने इस पर आपको डिफाइन करने की कोशिश की है कि उस टाइम आपकी जो मुस्लिम मेजॉरिटी थी उसको एक साथ किया गया था, तो एक स्टेट उस टाइम बनाई गई थी। आगे फर्दर डेफिनेशंस देखेंगे तो फिर आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। ऑल राइट, दिस वॉज जस्ट द मीनिंग, व्हाट डू यू मीन बाय नेशन स्टेट। अभी तीनों चीज़ों को अलग अलग देखेंगे, फिर देखेंगे कि जितने आपकी क्लास में ऑब्जेक्शंस हुए थे वो किस किस कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं। क्लियर? So state is basically, it's a body of government the rules and the laws government officials and their titles, the physical boundaries, define them. Now nation, that the people inside तीसरी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हूँ। in which people are
sovereign states that interacts with one another in varying degrees and in varying ways. All right, have you all noted down? So the three concepts are in front of you. What have you understood? क्या समझ आ रही है बात इसमें से? तीनों चीज़ें सामने हैं. What is a state? A state that has proper government, proper rules and the laws. एक रियासत बनाई आपने, state is your रियासत. And you have certain parameters in order to run the system of your state. You have designed certain rules, right? पाकिस्तान एक स्टेट है तो पाकिस्तान में भी कुछ कानून है, कुछ गवर्नमेंट है, उसके तहत सिस्टम चल रहा होता है, right? Officials and their titles, the physical boundaries मार्क हुई भी हैं, लैंड बाउंड्रीज भी हैं और सी बाउंड्रीज भी हैं, स्पेस बाउंड्रीज भी हैं हमारी. Obviously, you cannot run the system until unless you have some limitations. यहाँ तक बात क्लियर होगी स्टेट की. What is a nation? The nation is created by a shared belief that the people inside a country are connected to each other. कौम बनाई गई कि तमाम मुसलमान एक जगह पे हो जाएं, तमाम हिंदू एक साइड पे हो जाएं, ठीक है. कॉमन बिलीफ रखा गया आपने. लैंग्वेजेस जो आपने बात की थी कि सिंधी और बलोची, दैट कम्स लेटर. आप लोग जब क्लास में फ्रेंड्स और वो करते हैं तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेने के बाद, एक दूसरे का नाम पूछने के बाद, वी ट्राई टू सर्च द कॉमन थिंग्स इन अस. आप कहते हैं अच्छा ये सुननी है, ठीक है. अच्छा, वॉट एवर आई टॉक इन द क्लास प्लीज़ डोंट टेक इट सीरियस. मज़हब की कोई भी बात हो उसको तो सीरियस नहीं लीजिएगा. इट्स जस्ट अ न्यूट्रल कॉन्वर्सेशन इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड, राइट. तो आप जब ढूंढते हैं, आप अपने देखते हैं कि भाई मैं जिस फ़िक़्ह मज़हब से ताल्लुक़ रखता हूँ या जिस फ़िरक़े से मैं हूँ, दोस्ती आपकी सबसे होती है, लेकिन क्लास में आपके क्लोज थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं. आपकी सेम थिंकिंग हो जाती है, सेम आपका वो आप ढूंढते हैं कि हम अपने ही उसमें कर लें, ठीक है. और वो ज़रूरी नहीं है कि अगर वो नहीं होते आपको क्लास में आपकी इंटरेक्शन नहीं हो सकती. इट कैन बी डन बट यू फर्स्ट ट्राई टू सर्च द कॉमन थिंग्स. दोस्ती कब होती है? दोस्ती तभी होती है जब आपकी म्यूचुअल थिंग्स होती हैं, ठीक है. सो द नेशन स्टेट सिस्टम इज़ द पैटर्न ऑफ पॉलिटिकल लाइफ इन विच पीपल आर separately organized into sovereign states. नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट तब आएगा जब उसमें रहने वाली कौम की एक खुद मुख्तार हैसियत होगी, जो इंडिपेंडेंट होगी, आज़ाद होगी, राइट. इफ यू डू नॉट हैव दिस सॉवरेनिटी तो यू विल बी अंडर एनी अदर स्टेट और अंडर एनी कमांड. Sovereign states that interacts with one another in varying degrees and in varying ways. कि जो एक दूसरे से जब इंटरेक्ट करेंगे तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को लेके वो चलते हैं. हैव आई मेड एनी सेंस और नॉट? जो स्टेट, नेशन और नेशन स्टेट, जी. देखें, आपका जवाब मैं सिर्फ ये देना चाहूँगी कि एक मेजॉरिटी जहाँ पे इकट्ठी कर दी गई है. वैसे तो मुस्लिम, अगर हमने पाकिस्तान को मुस्लिम उसके बेस पे लिया था तो दुनिया में सारे मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में ही तो नहीं हैं. तो वो जो आप हैं कि डिफरेंट जगहों पे हैं, लेकिन एक हब बना दिया जाता है कि मेजॉरिटी यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है.
उसके बाद फिर कोई कोई जिधर जिधर वो अपना रहा है वो हर किसी के अपने अपने उसमें है, आगे ही बात क्लियर हो गया? कैन एनीवन रिमूव? टॉपिक भी मिटा दिए, सब कुछ मिटा दिए। ओके, देयर वाज अ ट्रीटी हाँ हाँ, होल्ड 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 होल्ड, अभी से नहीं बताना, सबर सबर, लेके आ रही हूँ आ रही हूँ उसी तरफ लेके आ रही हूँ। अच्छा ओके, सो Westphalia is the name of a city in Europe, right? A treaty was signed in 1648 and after that a concept of state nation state system generated. But आप लोगों का जो आज का टॉपिक है पढ़ने का, वो उस बैकग्राउंड को पढ़ना है कि जिसकी बेस पे हम इस कॉन्सेप्ट तक पहुँचे हैं, ठीक है? कि इससे पहले कि मैं मेजर इवेंट्स आई विल टेल यू कि जिसको के तहत लड़ झगड़ के हम एक कॉन्सेप्ट तक पहुँचे, और आज जब भी हम नेशन स्टेट की बात करते हैं वी बिगेन विद दिस ट्रीटी in 1648 that took place, right? चलिए जी, अब जो मेजर इवेंट्स हुए थे आई विल ओनली राइट दोस्त, फिर हम डिटेल में बात करते हैं, ठीक है? ये थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ाना आप लोगों को इसलिए ज़रूरी है कि जब कोई भी आपका स्टेट सिस्टम पे सवाल आएगा और आपसे कहा जाएगा कि आज के उसको कंपैरिजन करें, तो जब तक आप पिछले को नहीं थोड़ा सा एक पेज पर डिफ़ाइन करेंगे तब तक आप आज वाले सिस्टम को नहीं समझ सकेंगे। क्लियर हो गया? Okay. Now what was the pre-Westphalian world? The sovereignties BC, इम्पीरियलिज्म। अभी मैं इन सब की डिटेल नहीं बता रही हूँ, अभी मैं सिर्फ आपको वो इवेंट्स बता रही हूँ कि जो मेजर हुए हैं 1648 तक। So imperialism by the Roman Empire 50 BC to 400 AD. Centralization and decentralization in the Middle Ages. That is 400 to 1000 AD.
There were 3 civilizations. कौन कौन सी थी? अरबिक, बाइजेंटाइन, यूरोप. Another event took place देखिए आहिस्ता आहिस्ता आप 1000 और 1500 तक आ रहे हैं. द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसनेशनल नेटवर्क्स इन द लेट मिडल एजेस. अस्सलाम वालेकुम. जी 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 यहाँ से अब आपकी 80 वाली शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अभी आप मॉडर्न स्टेट सिस्टम की तरफ आ रहे हैं ना, तो ग्रीक्स और वो उससे निकल के. अरबिक, बाइजेंटाइन एंड यूरोप, ये 3 सिविलाइजेशंस थी उस वक्त. ये देखें ना, आप उसको फॉलो करें. वो 400 BC था, फिर ये आपको पता है ना कि वो बिफोर क्राइस्ट में उल्टा चल रहा होता है, ज़्यादा से वो कम की तरफ जाता है, लेकिन वो जो दूसरा हम AD वाला सिस्टम को स्टार्ट करते हैं वो फिर कम से ज़्यादा की तरफ जा रहा होता है. हैव यू ऑल हैव द आइडिया?